Okay, you know that what is dot product and cross product. Suppose that A is given 3x minus 2y plus 5z. B is given x minus z. So what will be A dot B? A dot B will be A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. So it will be 3 into 1 minus 2 into 0 plus 5 into 1, because this z coefficient is 1. So whatever answer you are getting, 8, that will be your dot product. क्रॉस प्रोडक्ट में यही क्या आएगा आंसर, A क्रॉस B, I J K 3 minus 2 5 ना 1 0, so that minus 1, then it will be minus 5, so minus 5 it will be minus 2. सो डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर क्वांटिटी आता है आंसर, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी आएगा आईजेके में, आईजेके और एक्स वाई जेड. इफ आईजेके इज देयर, okay, next. Now in your previous classes I think you have studied your line in 2 dimension. 2 dimension में लाइन आपने पढ़ा है, 2 dimension में लाइन का ग्राफ क्या आएगा, एक लाइन आएगी, राइट. So if ax plus by plus c is equals to 0, then your line in 2 dimension. But 3 dimension में x y z अगर होगा, लाइन इन स्पेस अगर होगा, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा. That is the first thing. As you know that what is the equation of x axis, so whether this is x axis and this is y axis. x axis का इक्वेशन क्या रहेगा, always y is equals to 0, right, and y axis का x is equals to 0. Similarly in 3 dimension, if line in a space in a plane, then x axis का इक्वेशन रहेगा y is equals to 0 and z is equals to 0. There are two equations, right. y axis का x is equals to 0, z is equals to 0, and z axis का x is equals to 0, y is equals to 0. So this is line in space. Now first, suppose that in 3 dimension, vector form, first case है equation of a line passing through one point and parallel to a given vector, means passing through one point passing through A and parallel to B. तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आता है R is equals to A plus lambda B. और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगा, सपोज दैट पासिंग थ्रू A दिया है x1 y1 z1 and parallel to a vector B whose direction ratios are L, M, N. Then it will be x minus x1 upon L is equals to y minus y1 upon M is equals to z minus z1 upon N is equals to some constant, suppose that R. Okay, so this is the vector equation, line passing through a point and parallel to a vector. This is in Cartesian. Okay, so there may be question based upon this. Next, now you know the relation between direction ratios and direction cosines. L is equals to क्या होता है, L is equals to होता है cos alpha, M is equals to cos beta, N is equals to cos gamma. So these are direction cosines. Direction cosines में L square plus M square plus N square
1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज व्हाट 1, एंड एनी थ्री numbers which are proportional to L M N, L M और N को proportion में है, then they are called a direction ratios. So L upon A, M upon A, B, N upon C is equals to any constant. So can I replace L as, suppose that constant is K, Ka, M as Kb and Kc. So again, if direction ratios are given, then also you can easily find out equation of a line in this form: x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c is equals to m. Understood? Next, second form of equation of line in space. Suppose that अभी मुझे क्या दिया है 3 डायमेंशन में, थोड़ा बड़ा फिगर निकलता हूं. Second case, passing through 2 points. A and B. A और B पॉइंट से अगर पास हो रहा है जिसके वेक्टर A and B is given, then वेक्टर इक्वेशन आएगा R is equals to A plus B minus A into lambda, and Cartesian form x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1 is equals to any constant k. This is the second form of equation of line which is passing through 2 points. अगर 2 point दिए हैं, suppose that 3, 4 or minus 2 and 7, 0 and minus 4. Suppose that these 2 points are given, then first point होगा x1 y1 z1, second point होगा x2 y2 z2. Put this, because x y z are variables, you will get the equation, whatever equation you are getting, that is the equation of a line. Sir, I just joined. How many pages should I have to start now? Okay, एक बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है, उसके लिए बताना चाहता हूं. हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है लाइन इन अ स्पेस. पहले लाइन इन 2 डायमेंशन आपने सीखा है जिसका इक्वेशन ax plus by plus c is equals to 0 था. सपोज दैट 3x plus 5y plus 7 is equals to 0. ये आप x और y एक्सिस पे प्लॉट कर सकते थे इजीली, बट यहाँ पर जो लाइन एंड प्लेन टॉपिक है 3 डायमेंशन में, उसमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशन फाइंड आउट करना है. जैसे कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, अगर एक इक्वेशन ये लाइन है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सपोज दैट ये लाइन ए पॉइंट से पास होती है जिसके पॉइंट से x1, y1 और z1 कोऑर्डिनेट्स है, और पैरेलल टू वेक्टर बी दिया है जिसके डायरेक्शन रेशियो है सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 z इज इक्वल टू 0 या a1i जो भी है. नेक्स्ट, तो अगर एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b, एंड कार्टेशियन फॉर्म में आता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, या abc को आप lmn से भी रिप्लेस कर सकते हो. तो ये एक पहला फॉर्म हो गया लाइन का. बिकॉज वन बॉय ही वाज आस्किंग मी कि सर अभी ज्वाइन हो गया तो एक बार फिर से बताइए. तो अभी तक हमने 2 ही इक्वेशन देखे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, या फिर 2 पॉइंट दिए होंगे, सपोज दैट ए दिया है और बी भी दिया है x2 y2 z2. सो ये ए बी का इक्वेशन क्या आएगा? So that is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म. और वेक्टर फॉर्म में r is equals to a plus b minus c into lambda. Okay. नेक्स्ट, सो हमने यहां से शुरू किया था. एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y is equals to 0, z is equals to 0 इन 3 डायमेंशन. 2 पॉइंट फॉर्म भी हमने देखा. अभी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर,
Next is length of perpendicular from a point to a line. लाइन का इक्वेशन दिया है, इससे आपको पता चलेगा कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 z1 से, किसे पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, राइट। अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिया है और पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, अब एक पॉइंट है, सपोज दैट सपोज दैट एक लाइन है और एक पॉइंट दिया है, सो व्हाट इज परपेंडिकुलर लेंथ, ये क्या होगा, द फॉर्मूला इज दिस रूट, जहां पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं ए, सपोज दैट ये P है ABC, then that will be a minus x1 whole square, b minus y1 whole square, c minus z1 whole square minus l into a minus x1 m into b minus y1 plus n into c minus z1, where lm और n क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन से। ओके, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, एंड while taking question MCQ again we will discuss। ओके, जूम करना है, ठीक है। One minute. Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. Mm-hmm. You have asked for the hard copy. हाँ, डन। Next. The length of perpendicular drawn from a point to the line. अगर वो वही लाइन वेक्टर फॉर्म में दी है, फर्स्ट the line was given into x minus x1 upon l, y minus y1 upon m, z minus z1 upon n, तो लाइन वेक्टर फॉर्म में दी थी। अब लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, अगर लाइन ये वेक्टर फॉर्म में दिया है एंड ये पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करना है, देन द फॉर्मूला इज दिस। व्हाइल टेकिंग क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। If you want to note down, I can zoom it. So अभी तक हमने ये देखा कि लाइन का इक्वेशन टू फॉर्म में कैसा होता है। पहला पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म, देन passing through 2 point Cartesian and vector form. After that we have seen how to calculate the distance of a point from a line if the line is given in Cartesian form and if the line is given in vector form. Next, अभी दो लाइन एक तो पैरेलल होंगे या फिर पैरेलल नहीं होंगे, राइट। Now two lines in a space are said to be skew lines. Skew कब होते हैं? They are neither parallel nor intersecting. Parallel भी नहीं और
इंटरसेक्टिंग भी नहीं, ऐसे 3 डायमेंशन में आते, 2 डायमेंशन में नहीं। जो लाइन पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करते, मीन्स वो अलग अलग पेन है। देन if L1 and L2 are the two skew lines, then the line length of perpendicular to both L1 and L2 is called as line of shortest distance. तो ये दो लाइन में जो परपेंडिकुलर लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कोई भी दो लाइन ले लो ना, देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये ना तो पैरेलल है ना, और ना ही इंटरसेक्टिंग है। देन इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? सपोज दैट लाइंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर और कार्टेशियन दोनों केसेस हम देखेंगे। Suppose that r is equals to a plus a1 plus lambda b1 and r second line is given a2 plus mu b2, ये कांस्टेंट अलग है। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट b1 b2 इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस a1, तो ऊपर का तो नंबर में आएगा, राइट। नेक्स्ट नीचे का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, मींस आफ्टर ऑल यू व्हाट यू आर गेटिंग नंबर में ही आएगा, एंड डिस्टेंस तो नंबर में ही होता है ना, सो यू आर गेटिंग ये स्केलर क्वांटिटीज। अंडरस्टूड? जब एग्जांपल देखेंगे तब आपको फॉर्मूला फिर से याद होगा। आई एम रीडिंग once again. If the two lines are given in vector form, then their shortest distance b1 cross b2 dot a2 minus a1 upon b1 cross b2 का मैग्नीट्यूड। ओके, अगर वही लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, and if the lines are given in this form, this is the first line and this is the second line, जहां पर a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ वेक्टर b, जिसे वो पैरेलल है और पासिंग थ्रू x1 y1 z1 है। दूसरी लाइन पैरेलल उस वेक्टर को है जिसके डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है एंड पासिंग थ्रू x2 y2 z2 है। तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दिस डिटर्मिनेंट x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ bc, बक आप ध्यान में रखो, bc ca ab, okay, bakab, so you will understand. तो ये तो पता है x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन रूट ऑफ बकअप मींस bc रूट में bc दो बार लिखो, प्लस ca दो बार लिखो, प्लस ab दो बार लिखो, माइनस कर दो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, इको आ रहा है, किसका माइक चालू होगा तो बंद करो। If you want to note down, you can note down this formula. Again, the shortest distance between parallel line देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई होगा, इसमें डालोगे तो भी आएगा। Next, we will start taking question now. Sir, हाँ बोलो। so the b vector in the final formula, that is हाँ. b is equal to a2 minus a1 cross b1. Below that, This. the one on the left. Oh, wait If 1 minute. 1 minute. In which this formula shortest distance इसमें है, यहां तक है कोई?
No, sir. हाँ नीचे Below वाला that. बिलो दैट, हाँ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। एक्चुअली यहाँ पर स्किप हो गया है पूरा पीडीएफ, वेट एक मिनट। हाँ द सेम थिंग हियर इट इज रिटन क्लियरली, द सेम पीडीएफ आई एम शेयरिंग। जो मैंने सिनॉप्सिस दिया था वो यही है, जेईई मेन के बुकलेट से है, एक्स एक्सिस का, देन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो गया, एंड नेक्स्ट यू आर आस्किंग दिस थिंग। Ah, yes, sir. हाँ Sir, in that B vector, that is the cross product of B1 and B2, ना? हाँ देख बेटा, ये बी कौन सेम रहेगा, ये बी सेम क्यों रहेगा पता है, दो लाइन अगर पैरेलल है, Same direction ratio. हाँ डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए बी तो सेम रहेगा। Okay. Understood? A1 and A2 are different, but B will remain same. That's why. ठीक है। So now we'll start taking, इतना ही है आपको। तो लाइन में आपको क्या क्या है पता हो गया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओके, एंड पर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक, नेक्स्ट एंगल बिटवीन लाइन भी होगा, उसका भी फॉर्मूला मैं दे दूंगा ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फर्स्ट एमसीक्यू। देखो जब तक आप उसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तब तक आपको लाइन और प्लेन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको दिखना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है, तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा तो देखो ये ए पॉइंट है, 0 1 एंड 2, एंड इक्वली इंक्लाइन टू मींस डायरेक्शन इक्वली इंक्लाइन मींस एंगल सेम है, मींस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, सेम है। तो एल क्या होता है, कॉस अल्फा, इट मींस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस गामा इज इक्वल्स टू, सपोज दैट कोई तो के ले लो, इट मींस, बट हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, बट अल्फा बीटा गामा एक ही है, इट मींस 3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा 1 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, सो कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस और माइनस 1/√3। तो आपका जो एल एम और एन, एल एम और एन है 1/√3, अंडरस्टूड, प्लस और माइनस। तो 1/√3 तो आपको मिल गया, राइट, एल एम एन। अभी पॉइंट भी है, सो मेरा इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल्स टू k होता है, राइट। सो x माइनस x1 क्या है, ये होता है x1 y1 z1, सो x माइनस 0 अपॉन 1/√3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1/√3 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 1/√3 इज इक्वल्स टू k। तो 1/√3 हट गया, तो x माइनस 0, so x minus x by, so it will be this one, last one, क्योंकि इसका ये तो हट गया, so x is equals to y minus 1 is equals to z minus 2, ये इक्वेशन है डी ऑप्शन, अंडरस्टूड। ठीक, नेक्स्ट, a line passing through this point and direction cosines are this is a point on the line such that AP is equals to R, then the coordinates of point P। देखो लाइन अगर 3 डायमेंशन में होगा तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि वो इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट वाला है या पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा वेक्टर फॉर्म में दिया है या कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो अभी मुझे लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है, मींस ए दिया है, हैज डायरेक्शन रेशियोज मींस बी वेक्टर जिससे पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए LMN। इफ P is point on the line,
P एक पॉइंट है उस लाइन पे, सपोज दैट एक लाइन है, ये A पॉइंट है जिसके x1 y1 z1 है, और ये B वेक्टर है जिसके LMN दिया है कितना, LMN ही है चलो, और ये पॉइंट P रैंडम पॉइंट है, वेरी हो रहा है, इसका मतलब P है x y z, सो x माइनस x1 अपॉन ये L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या है, AP इज इक्वल टू R, सो R, इसे अगर R हम कंसिडर करते हैं, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P मींस x1 y1 z x y z हमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताइए अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस x1 बन जाएगा LR, y माइनस y1 बन जाएगा MR, z माइनस z1 बन जाएगा NR, so x will be what, LR plus x1, y will be MR plus y1 and z will be NR plus z1, so option B. Understood? If you understood, write in the chat box. Sir, Okay. हाँ बोलो. sir, in this we substitute lambda with R over. Yes. Okay. Oh. Next. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप. ओके, वन बॉय इज टेलिंग कैन वी गो फास्टर. ओके ठीक है, चलो फटाफट लेंगे. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट मींस यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, ये दिया x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2. सो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर मिल जाएगा आपको, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस z1. सो पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ, x माइनस x1 क्या है 2 अपॉन 3 माइनस 2, सो इट विल बी x माइनस 2 बाय 1. सो x माइनस 2 बाय 1 है किधर, x माइनस 2 बाय 1 वाला सर सी ऑप्शन होगा शायद से, क्योंकि सबको -1 से मल्टीप्लाई, या इसे मॉडिफाई किया है उन्होंने फिर बाद में, ठीक है. सो सेकंड ऑप्शन अगर देखो तो y माइनस y1 क्या है -3 अपॉन -4 माइनस 3. सो इफ यू सिंप्लीफाई देन यू विल गेट x माइनस 2, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है. सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ सॉल्व सेकंड, फोर्थ वाला सॉल्व करो. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अगेन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन मींस थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आर लाइक सेम ओनली. Now solve fifth वाला. फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया मींस ये x1 y1 z1 दिया है एंड पैरेलल टू z एक्सिस. अगर z एक्सिस को पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0, राइट, उसे पैरेलल है वो. सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट डाउन. फोर्थ तो आप आराम से करोगे. सी और डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलो सी और डी भी ऑप्शन आपको दिखाएंगे. अच्छा, सी डी ऑप्शन इधर दिया है. सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि सी डी करूंगा तो उधर ये छोटा हो जाएगा. सो फिफ्थ का आंसर सी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं फिफ्थ का आंसर सी, कुछ लिख रहे हैं फिफ्थ का आंसर बी, कुछ लिख रहे हैं फिफ्थ का आंसर ए.
तो देख लो क्या होगा। पैरेलल किसे है, z एक्सिस को, मींस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, जहां पर x 0 है y 0 है, सो ऑब्वियसली b ही होगा ना। ये है x1 y1 z1, और पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल है तो उसके y इज इक्वल टू 0, z एक्सिस को पैरेलल है, मींस 0 0 और 1 है, सो ये b वेक्टर है। सो x माइनस a अपॉन 0, y माइनस b अपॉन 0, z माइनस 1 अपॉन 1, सो दिस इज b। नेक्स्ट 6th वाला, solve the 6th। Try to solve 6th and 7th। See, in question number 6, the equation of a line passing through this point and perpendicular to z axis को perpendicular है, it means ये L M और ये 0 है, z axis को perpendicular means जो n है that is 0, so what will be x minus a upon L is equals to y minus b upon n is equals to z minus c upon 0, so the answer A is the correct answer। 7th वाला देखो, 7th में क्या पूछा है, ये लाइन दिया है, लाइन से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर पॉइंट आपका पासिंग थ्रू पॉइंट है 2 -1 और 5, 2 -1 और 5 अगर पॉइंट है, एंड डायरेक्शन n L M N, L है -2, n है -3, n है 1, ये इंटरसेक्ट इन दिस पॉइंट, इन द पॉइंट, ओके। तो इससे जो आपको एक्स वाई जेड आने वाला है, इसका एक्स वाई जेड इसमें रखो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद। बोलो। Can you show options, please? ओके, Sir, if we substitute the options in both equations, then we get a equal ratio in line 1 and again right. in 7, चलेगा ना? चलेगा चलेगा, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट दिस प्लेन मींस ये एक्स वाई जेड, अगर आप ये ऑप्शन इसमें भी रखते हो और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इट मींस यू आर गेटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अंडरस्टूड, मींस एक्स वाई जेड वैल्यू जो दोज आर सेटिस्फाइंग। तो अगर आप 3 इंटू, किसी का आंसर आ गया है 38/7 अगर लिख देते हैं
-4 into 29/7 प्लस 23/7 इज इक्वल टू 3 आता है क्या देखो। तो 7 is सर 114 आएगा पहला। 114. नहीं नहीं 84 के बदले 114 है। Okay. Right. 114 minus 116 means -2 plus 23. -2 plus 23 21/7 तो 3 आ रहा है दोनों साइड पे। मीन्स ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो आपका ट्रायल एरर मेथड हो गया। बट द रियल आंसर क्या होगा आपको सर बी ऑप्शन से भी सेटिस्फाई होगा। यस कौन सा? बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सी सेटिस्फाई हो रहा है तो सी ही आंसर है, और कौन सा? बी भी हो रहा नहीं है। सर बी भी होगा। हाँ सर। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स अलग अलग है ना। नहीं डी 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 ऑप्शन। बी यू आर टेलिंग दिस वन। नहीं नहीं नीचे नीचे डी डी डी। हाँ ओके ठीक है। सर हाँ बोलो। वो डी लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। इट हाँ। सेटिस्फाइज द प्लेन इक्वेशन नॉट द Yeah. लाइन इक्वेशन। दैट यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ। अभी आपको बी और सी और डी दोनों में ऑप्शन मींस ए और बी तो हट गया, अभी ये दो इसे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। इसे भी अगर सेटिस्फाई करते हैं तो मींस इनका रेशियो सेम आना चाहिए। फिर अगर मैं ये रखता हूँ 1 - 2/2 -2 इज इक्वल टू 2 minus 2 plus 1 by -3। पहले दो में देखो -1 upon -2 is equals to 3 by -3। so 1/2 is not equals to -1 नो। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट ये अगर आप वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। बट ये तो ट्रायल एरर मेथड हो गया। अगर आपको रियल आंसर निकालना है तो सपोज दैट दिस इज समथिंग कांस्टेंट के। अगर आप इसे अगर आप इसे k या r कंसिडर करते हो k, so x will be what -2r plus 2, y will be what -3r, अगर r ले रहे हो तो -3r -1 and z is equals to what r -5। so x y z इसे इसमें रख दो फिर 3 into -2r plus 2 -4 into, so इससे आपकी r की वैल्यू मिल जाएगी और वो r फिर से यहाँ पर रख दो, then you will get value of x y z। this is the correct method। next can you solve this 8th वाला? 8th solve करो। एट का बी। 8 का बी आएगा राइट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मींस हमारी जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है राइट। सो एक तो पॉइंट यहाँ पर ही मिल गया, पहला पॉइंट तो 0 0 मिल गया राइट। एंड सेकेंड पॉइंट कौन सा है? ए बी सी। सो इट विल बी x2 y2 z2 और इसे x1 y1 z1 ले लो। तो 2 पॉइंट फॉर्म में अगर आप निकालते हो सो x - x1 x, तो आपको बी आंसर मिल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म में अगर निकालते हो तो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट solve this 9th one।
इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। मुझे बताइए, एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मीन्स ये दिया है x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये भी दूसरी लाइन है जिसका पॉइंट x1 y1 z1 है 2 -1 और 3, राइट। और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, तो दोनों लाइन के पैरेलल है, इस मींस दोनों में भी ये 3 -5 और -7 सेम है। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, देखो, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मींस x माइनस ऑफ -1 अपॉन इसी को पैरेलल है y -2 अपॉन -5 z minus of -3 upon -7. So it will be x plus 1 by 3, y minus 2 by -5, z plus 3 by -7. So अगर आप देखते हो तो कौन सा आंसर आएगा, इक्वल आंसर कौन सा है, 3 चलेगा। ये माइनस को प्लस किया है, यहाँ पर b होगा, राइट। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ठीक है, देख बेटा, यहां पर इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, एक मिनट, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट से पास हो रही है, मींस हमें एक इक्वेशन निकालना है जो कि इससे पास हो रही है। हमारे पास इक्वेशन होता है x माइनस x1 पासिंग थ्रू पॉइंट वाला, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, राइट। अभी ये x1 y1 z1 तो दिया है, x1 है, y1 है और z1 है, x1 है -1, सो x माइनस ऑफ -1 अपॉन ये एबीसी कौन से वेक्टर को पैरेलल है वो नहीं दिया है, बट इस लाइन को पैरेलल है। इट मींस ये लाइन है, इसे ये बी वेक्टर को पैरेलल है, वेक्टर हमें नहीं पता था, बट और एक लाइन है जिसे ये पैरेलल है, मींस इसे अगर ये पैरेलल है, इसे ये पैरेलल है, तो दोनों के भी डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, अंडरस्टूड, डायरेक्शन सेम होगा। इट मींस इसके लिए, पहले लाइन के लिए यही डायरेक्शन रेशियोज है दूसरे लाइन के, क्योंकि वो उसे पैरेलल दिया है ना, अंडरस्टूड। So A is again 3, y minus 2 upon B क्या है, इसके लिए भी -5 है, z minus of -3 upon -7. So x plus 1 by 3 is equals to y minus 2 by -5 is equals to z plus 3 by -7. बट ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन नहीं है, x plus 1 वाला यहाँ पर है, बट ये, अच्छा, ये एक ऑप्शन हो सकता है पहला, देखो, और ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट x प्लस 1 के लिए अगेन अगर साइन चेंज किया तो सो ये दोनों में से ये पहला और तीसरा तो हट गया, राइट। सो अभी x प्लस 1 को 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, उसमें कुछ फर्क नहीं है, बट यहाँ पर -5 को हटाने के लिए 2 - y किया है यहाँ पर, तो सेम चीज यहाँ पर भी किया है, 3 प्लस z -7, राइट। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, टेंथ वाला सॉल्व करो। अभी देखो, पहला जो था पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन था, अभी पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन है। देखो यहाँ पर चेंज हुआ है, वही है, बस यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है।
आएगा। देखो एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर दो लाइंस को पैरेलल है इस सी परपेंडिकुलर टू द लाइंस, तो इसके डायरेक्शन रेशियो है ये है, परपेंडिकुलर टू दीज टू मींस पैरेलल टू उनका क्रॉस प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर टू दीज टू मींस पैरेलल टू उनका क्रॉस प्रोडक्ट मींस perpendicular to I minus 3j plus 0k and 5i plus 2j plus 11k is parallel to इनका क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज दैट ये A है, ये B1 है और ये B2 है, सो B1 क्रॉस B2 को पैरेलल है मींस I j k 1 minus 3 0 5 2 11। इससे जो वेक्टर मिलेगा आपको वो होगा वेक्टर बी। वो वेक्टर क्या होगा? बी। सो ये वेक्टर से पास होने वाला, ये वेक्टर को पैरेलल और दिस से पास होने वाला इक्वेशन कौन सा है वो लिखो। ओके, एक मिनट में पानी पीता हूं। See, if we'll find out this answer, then it will be I into, ब्लू भी नहीं चलेगा, ब्लैक ही चलेगा, I into minus 33 minus 0 minus j into 11 minus 0 plus k into 1 minus 15. So it will be minus 33i minus 11j 15 plus 1 16k, right? So इससे पैरेलल है, ये आपका b बन गया इसके लिए। So x minus x1 4 upon minus 33. So x minus 4 upon minus 33 कौन सा ऑप्शन है? b ऑप्शन है। अंडरस्टूड? ठीक, नेक्स्ट। इलेवेंथ, क्वेश्चन में क्या दिया? देख, एक लाइन दी है, लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन, मींस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इन द पॉइंट ए, देन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। वही सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, राइट? नेक्स्ट 12th वाला क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स मींस 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पर,
x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है। इंटरसेक्ट द प्लेन मींस इसका जो सॉल्यूशन है इन दोनों का, इसका इक्वेशन बनाइए और वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। मींस दिस इज अगेन लाइक 11th एग्जांपल। सो 11th एंड 12th में सेम पूछा है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? नेक्स्ट 13th में अलग पूछा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन दिया है एंड द प्लेन। फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन में ये पूछा है लाइन का इक्वेशन दिया है और पॉइंट प्लेन का इक्वेशन दिया है। सो लाइन और प्लेन इनको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? इट मींस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। सो दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट। तो फिगर में अगर ड्रॉ करना है तो एक लाइन है और एक प्लेन है, तो इन दोनों में एक पॉइंट है पहला, और दूसरा पॉइंट एक रैंडम पॉइंट दिया है 3 4 5। सो दिस इज योर Q एंड दिस इज योर P। सपोज दैट P आपका आ गया 5 2 और 3। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस PQ? डिस्टेंस PQ फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। दे आर आस्किंग अस टू फाइंड इंटरसेक्शन like question 11 and 12 distance using distance formula for two given and found points. Okay, हाँ right, correct। तो क्वेश्चन 11th और 12th में जो पूछा था वही यहां पर पूछा है पहला पॉइंट के लिए। तो 11 12 में जैसे आप एक पॉइंट फाइंड आउट करते तो वैसा पहला पॉइंट मिलेगा और दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पर, तो दूसरे दोनों का डिस्टेंस निकालना है, राइट। सो मैं इसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करता हूँ। x minus 3 upon 1 is equals to y minus 4 by 2 is equals to z minus 5 by 2 is equals to suppose that r. So x will be r minus plus 3, y will be 2r plus 4, z will be 2r plus 5. Now अब मुझे ये प्लेन में x y z डालना है। So x plus y plus z is equals to 2 दिया था, so x is r plus 3 plus y is 2r plus 4 plus z is 2r plus 5 is equals to 2। इससे मुझे r मिल जाएगा r 2r 3r 3 plus 2 5r plus 3 plus 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 is equals to 2। so 5r is equals to minus 10, so r is equals to minus 2। r minus 2 आ गया, यहाँ पर डाल दो, x y z मिल जाएगा आपको। so that numbers I'll put directly, you will get 1 0 1। so you will get 1 0 and 1, ये मिल जाएगा 1, ये मिल जाएगा 0, ये मिल जाएगा 1। तो मेरा P पॉइंट हो गया 1 0 1 और Q पॉइंट तो दिया है, Q पॉइंट कितना दिया है यहाँ पर 3 4 5। so distance of PQ will be root Q 3 minus 1 whole square plus
4 minus 0 whole square plus 5 minus 1 whole square. So it will be 2 square plus 4 square plus 4 square. So it will be 2 plus 16 plus 16, 34, 36 आना चाहिए. 2 का square 4. सर 4 आएगा. हाँ. So distance plus or minus 16, but distance always positive. So plus 6 is the answer. 6 option B. Okay. T. Next. अभी क्वेश्चन नंबर 14th and 15th भी सेम ही है. So without wasting time, I will explain directly. See, the distance of a point this to the point where this meets the plane. वही है. देखो दूसरा पॉइंट Q तो दिया है यहाँ पर ऑलरेडी. और P पॉइंट कहां से मिलेगा? ये लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन से. सो डिस्टेंस PQ फिर से निकालो, सेम आएगा, राइट? डिस्टेंस कैसे निकाला? देख, इससे कोऑर्डिनेट निकाला ना, 3, 4 और -4 और 5, और ये पॉइंट है. डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूले से निकाला. ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है ना, अभी तक वो चैप्टर वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया था मैंने, नॉर्मल फॉर्मूला, क्योंकि P और Q पॉइंट है. तो समझा भव्या? ओके. नेक्स्ट 15th भी वैसा ही है. 16th, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन 5 measure parallel to the line whose direction ratios are proportional to. डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू दिस है, मींस ये डायरेक्शन कोसाइंस है. अंडरस्टूड? डायरेक्शन रेशियो इसे प्रोपोर्शनल है, मींस ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं आपको. तो ये Q पॉइंट दिया है और ये प्लेन दिया है, राइट? और ये आपको दिया है LMN. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था. सर 2, 3 minus 6 डायरेक्शन रेशियो नहीं होगा? कौन सा? 2, 3 minus 6. ओके, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आएंगे. अच्छा, द मेजर पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू. डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू है तो 2R, 3R एंड 6 minus 6R भी ले सकते हो. ठीक है. नाउ विल गो टू डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्टेंस तो हो गया, अभी इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे. थर्ड 24 तक है. कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए यहाँ पर. ट्वेंटी वन वाला सोल्व करो. ये बेसिक है. एंगल बिटवीन लाइन फार्मूला नहीं है यहाँ पर. 2 लाइन परपेंडिकुलर आएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 21 में. सो द परपेंडिकुलर लाइन का एंगल 90 डिग्री है.
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, वेट। Write down one question. ये पीडीएफ में नहीं आया है क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन पहली लाइन दिया है r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस लैम्बडा इंटू 2i प्लस जे माइनस 3k। एंड दूसरी लाइन दिया है i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस जे माइनस 5k। ये नया क्वेश्चन है जो कि पीडीएफ में नहीं है। एक्चुअली पीडीएफ के कुछ ही पेजेस लिए था मैंने। सो द ऑप्शंस आर, try to solve using formula 3 by root 2 1 by root 5 2 by root 5 3 by root 5। ट्राई करो। Sir, please explain 14th in short. Will work too, and how did you know that line will be perpendicular to the 21st question? Okay. So आपको 14th वाला क्वेश्चन डाउट है, ठीक है, वो भी ले लूंगा मैं। पहला ये सॉल्व करो। 38 वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। One by root 5, B answer, which is correct. देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला आपको पता है, d इज इक्वल टू व्हाट, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। मुझे बताइए a1 a2 क्या है? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी होता है ना, आपके पास फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये a2 हो गया, एंड दिस इज b2। अंडरस्टूड? तो a1 मालूम है, a2 मालूम है, b1 मालूम है, b2 मालूम है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस।
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। देखो डॉट प्रोडक्ट ए नंबर स्केलर आएगा। सर B1 B2 सेम है, यहाँ पर B1 और B2 सेम नहीं है बेटा, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -5 है। ये 2i प्लस जे -3 के है, ये 2i प्लस जे -5 के है, ये 3 है और ये 5 है। ओके ठीक है, दिस इज 5 -5। B है आंसर। 1/√5। Yes, 1/√5. A1 minus A2. A1 minus A2 means I वाला 2 minus 1, that is 1. 1i. ऐसा निकालो, right? -1 minus 1j, that is -2j. And k वाला -2k. Sorry, ये -1 है, 1 minus 2, that is -1i. A2 minus A1 है ना? Then -1 minus 1, that is -2j and plus 2k. Similarly B1 क्रॉस B2 निकालो, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालो, so the answer is 1/√5. ओके ठीक है। सो इन दिस वे लाइन में इतना ही था, और एक 41th वाला कर दो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, 41th वाला। लाइन का इक्वेशन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है, राइट? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, ये पॉइंट दिया है P के कोऑर्डिनेट्स, और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के 2 - 2 - 3, और पासिंग थ्रू पॉइंट है 7 7 एंड 6। इट मींस एक पॉइंट दिया है और लाइन दी है आपको कार्टेशियन फॉर्म में। सो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट अगर आपको करना है, तो ऑलरेडी मैंने एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया था। अगर ये फॉर्मूला राइट, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था? देखो, क्वेश्चन के अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 41th वाला क्वेश्चन, इसके प्लेस पे दिया था x - 7। सो ये जगह लेगा 7 की, ये जगह भी लेगा 7 का, ये जगह लेगा 6 का, दिस इज 2, this was -2, and this was -3, right? और ABC पॉइंट है 3 2 1, ये A है 3, B है 2, C है 1। अंडरस्टूड? ये फॉर्मूले में डाल दो, you will get the length of perpendicular from a point to the
line. Square root 49, right? Next. Done. एक मिनट. So this was about line. Now about plane. Plane के बारे में. Wait. Where is that PDF? Yes. Wait 2 minutes. First case, suppose that the vector equation of a line passing through a point and parallel to B and C. Passing through a point. Suppose that एक point से pass हो रहा है and sorry ये तो second वाला केस है and perpendicular to vector. It means ये plane है XYZ है right? Passing through point ये plane में एक point है और ये perpendicular to vector है. Suppose that मैंने random point R ले लिया. मुझे बताइए AR और ये perpendicular तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा. इट मींस सॉरी डॉट प्रोडक्ट. सो AP इंटू और AR इंटू N is equals to 0. So what is AR? AR is R minus C in dot N is equals to 0. So RN minus AN is equals to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया प्लेन का.
which is passing through a point and perpendicular to a given vector. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. What will be the equation of plane passing through 2, 7, 5? Passing through 2, -7, 5 and perpendicular to 3i plus 2j minus 7k. इसका आंसर क्या आएगा? इक्वेशन है Rn minus An is equals to 0 और Rn is equals to An. ये होता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस. सो n वेक्टर क्या है? 3i plus 2j minus 7k. ओके, एंड a वेक्टर है 2i minus 7j plus 5k. सो r into n, सो r या फिर डिवाइडेड बाय n, इधर अगर आप करोगे तो भी चलेगा. सो a डॉट n क्या आएगा आपका? इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 3i plus 2j minus 7k. सो a डॉट n आएगा थ्रू 2 3 6 प्लस -7 into 2 -14 -35. So whatever you are getting, that is an. So r is equals to an इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे. अगर 3 पॉइंट फॉर्म है तो उसका इक्वेशन आता है x minus x1. सेकेंड है अगर 3 पॉइंट पासिंग थ्रू 3 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3. ये 3 पॉइंट दिए हैं. कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन आएगा x minus x1 y minus y1 z minus z1 x minus x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1. ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में इज इक्वल्स टू 0. अगर यहाँ पर दिया है 1 -7 3 5 2 0 एंड 2 -1 1. सो यू नो x1 y1 z1 तीनों भी पॉइंट मालूम है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. x y z वेरिएबल है. यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट. सो पहला देखा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर. दूसरा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 डिफरेंट पॉइंट. नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स. नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ
plane passing through a point and parallel to B and C. पूरे एट अ टाइम एक साथ नोट्स भी दे दूंगा, डोंट वरी. थर्ड केस है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A and parallel to B and C. देखो ये एक प्लेन दिया है, इसमें एक पॉइंट है और पैरेलल टू बी एंड सी. सो पैरेलल टू बी एंड सी, ये बी है और ये सी है. पैरेलल टू बी एंड सी मींस परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी. पैरेलल टू बी एंड सी मींस परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी. मींस फिर से हो जाएगा A dot B cross C is equals to 0. That is AP dot B cross C. P is random point anywhere. So these three equations I'll write, and after that we'll start taking questions. And one more normal point form of the plane, that is R dot n cap is equals to P. Okay, we'll go with this. ये तो मालूम है आपको प्लेन क्या होता है. कोई भी दो पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाले सभी पॉइंट्स अगर उसी सरफेस में हैं, देन इट डिसाइड अ प्लेन. इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन का होता है z इज इक्वल टू 0, z ऑफ x वाई z का होता है x इज इक्वल टू 0, zx का होता है y इज इक्वल टू 0. जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी डी आर द कांस्टेंट. अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो a कोएफिशिएंट 0 है, दैट इज x इज इक्वल टू 0. पैरेलल टू y एक्सिस है तो y 0, पैरेलल टू z एक्सिस है तो z 0, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन d कांस्टेंट इज 0. So this general form of equation of plane is ax plus by plus cz plus d is equals to 0. Next, अभी मैंने आपको बताया था ये है नॉर्मल पॉइंट फॉर्म. नॉर्मल पॉइंट फॉर्म मीन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर. n को परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू पॉइंट a है, तो n इंटू आर माइनस ए इज इक्वल टू 0. इसी का हमने nr माइनस ए आर इज इक्वल टू 0, दैट इज nr इज इक्वल टू ए आर लिया था. दैट इज नॉर्मल पॉइंट फॉर्म. ये वेक्टर फॉर्म है. कार्टेशियन फॉर्म में इफ x1 y1 z1 and direction x1 y1 z1 and the direction ratios of the normal to the plane are a b c, then x a into x minus x1 plus b into y minus y plus z c into z minus z1 is equals to 0. Okay, I will send the PDF. Next, passing through 3 point, एक पेज मिसिंग हो गया क्या? ओके हाँ, 3 पॉइंट इधर दिया है. अगर 3 पॉइंट से पास हो रहा है, if the plane, if p is the variable point in the plane which passing through a 3 point a b c, then the equation of plane is, तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 है. वही लिया था मैंने, x माइनस x1 है ना, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1. सो द सेम थिंग. Next, angle between two planes. Angle between two planes. Suppose that n1 is perpendicular to e1, वो तो
concept दिया है. So cos theta is equals to n1 dot n2 upon n1 into n2. And collinear lines अगर दिए हैं, so coplanar lines कब होते हैं? दो लाइन एक ही प्लेन में कब होते हैं? जब ये डिटर्मिनेंट 0 होता है. Also the equation of plane containing these two lines is this, and the plane divides the line joining segment in this ratio. So I think I will take this plane topic, if it is possible I will take in next lecture. Okay, इसमें पूरा बताना पड़ेगा डिटेल में, बिकॉज लाइन एंड प्लेन एट ए टाइम एक ही घंटे में होने से बेटर है, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे उसमें प्लेन खत्म कर देंगे. ओके, एनी डाउट? Yes, any doubt? अच्छा, one boy is asking that question. Question number 14 आपको चाहिए लाइन का. यही पूछ रहे हो ना आप? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मीन्स ये क्यू दिया है आपको, वेयर मीट्स दिस लाइन. तो ये एक लाइन है और एक प्लेन है, इससे आपको आर कंसिडर कर दो. ये क्यू पॉइंट तो हो गया, पी पॉइंट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन है, राइट? सो वन बॉय इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल एंड द लेक्चर. ओके, देखो ये क्यू पॉइंट तो दे दिया, राइट? अभी पी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कॉमन निकालना है. सपोज दैट मैं इसे आर से इक्वेट कर दिया, सो एक्स मिल जाएगा मेरा 2r माइनस 3, y मिल जाएगा मेरा r प्लस 2, z मिल जाएगा 2r प्लस 5. यहां तक क्लियर है? जो भी आई थिंक YADDHAN यादन. ओके, गुड. सो एक्स वाई जेड ये लाइन प्लेन लाइन को इक्वेट कर रहे हैं, राइट? और ये प्लेन का भी सॉल्यूशन है, मींस एक्स वाई जेड इसमें डाल दो फिर. सो एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3. सो एक्स की जगह 2r माइनस 3 प्लस वाई की जगह r प्लस 2 प्लस 2 इंटू जेड की जगह 2r प्लस 5. इसका आंसर कितना दिया है? 3. So if you simplify this, then 2r plus r 3r 3r plus 4r, क्योंकि 2 to the 4, 4 5 6 7r minus 3 plus 2 minus 1 minus 1 और ये 10 minus 1 और 10 plus 9 is equals to 3. So 7r is equals to minus 6, r is equals to minus 6 by 7. चलो कंसिडर कर लो, ये r आ गया. अगर ये r आ गया तो यहाँ पर रख दो, you will get value of x y z. मीन्स ये पॉइंट P मिल जाएगा तुम्हें. तो पॉइंट P मिल जाएगा, पॉइंट Q है. PQ का डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ओके, समझ में आ गया अभी? ओके, सो we'll end this lecture here only. प्लेन है, मैं टाइम निकाल के प्लेन भी कंप्लीट करूंगा आपका. ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE मेन एग्जाम. आई थिंक इट इज टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, राइट? सर बहुत लोग का हो गया, आज था 25 का भी था. ओके, बहुत से लोगों का हो गया क्या? गुड. चलो, कैसा था पेपर? लास्ट में सेशन से थोड़ा टफ था. लास्ट सेशन से ओके ओके. So if you have any doubt, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम सबको मिला, लेकिन और वो पनवेल का सेंटर भी बहुत आउट ऑफ द वे था.
हाँ, I know that Panvel is coming from Panvel to Kandivali for writing exam at the last moment. It was very सर difficult. और वो पनवेल का सेंटर भी पनवेल में नहीं था, वो बाहर था पनवेल के। I know once I visit there, Horizon Public School. For me also it was like same only. One exam नहीं was सर, there. वो हॉरिजॉन पब्लिक स्कूल नहीं था, पिल्लई में था, HOC पिल्लई। हाँ। वो तो और दूर है, 40 मिनट दूर है पनवेल से। Oh, then really बहुत परेशानी हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। Really it was very difficult time to एग्जाम है, उसी के दिन आपने पनवेल से कांदिवली ट्रैवल किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटी एग्जाम। सीटी के लिए ध्यान से देख लेना, सीटी में आई होप ये प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और सीटी के लिए हम एक ओरिएंटेशन सेशन लेने वाले हैं, आई थिंक 1 तारीख को लेंगे, जिसमें हम आपको पूरे एक्सप्लेन करेंगे कि ये तो पद बताए इस मार्किंग, वेटेज, मैथमेटिक्स में, एंड लास्ट पॉइंट लास्ट टाइम में आपका प्रिपरेशन 2 दिन में कैसा करना है वो भी बताएंगे हम। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं वो भी बताएंगे। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो वी विल इंक्लूड दैट थिंग इन ओरिएंटेशन which is going to means we are planning on 1st of August we'll conduct one webinar, in that we'll explain everything. Okay, chalo, so I'll end this lecture here and we'll meet in next lecture. I think it is on Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, ठीक।